Hi guys, good morning once again. So it's a new week now. What are we going to do in this week? So let me tell you in the starting itself. In this week, starting from Monday onwards until the end of Saturday, we would complete around 2 chapters in science that we would be able to complete current electricity, and we would be able to complete one more chapter in chemistry, which is chemical reaction and equation, or acid bases and salts, whichever you feel like. Let me know in the comments which one would you like to complete first, whether acid bases and salts or chemical equation and reaction, and we'll be able to complete that. So 2 chapters would complete in science. In maths, once again, there would be one chapter which will be entirely completed. I think one I'll try and complete two, but I'm not sure whether I would be or not. So I won't promise, but of course, one is for sure, which will be polynomials. And of course, I'll try to complete real numbers as well, but let us see. I don't know as of now. So polynomials and real numbers hopefully should be completed. Current electricity and chemical equation and reaction or acid bases and salts would get completed. In history, in this week, we should be able to complete nationalism in India, and hopefully we should be able to complete either power sharing, or we can take any one chapter in geography, say anything at all, whatever you feel like. So let me know, by the way, in the comments which particular chapter do you want me to complete, and I would love to complete that chapter. Okay, so without wasting time, let's start directly with the part of current electricity. Okay, so from today, yesterday, I did check all of the copies, all of the sheets which you sent me over the WhatsApp. Any new student, once again, the same pitch, what I've been saying from last around 12 days, if somebody has just joined right now, do not worry about whether the syllabus is यहाँ का काफ़ी आगे निकल गया या पीछे. You can go back to the first video, watch it, and if you're a new joinee, join the WhatsApp group, and then of course I'll be able to send you the new sheet. Okay. Now, अभी तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था that what do you mean by the word current, that is the flow of charges in one direction. We talked about random motion of electrons. We applied the word potential, which was nothing else but a thrust, a force, because of which the electrons were moving in one direction. The unit of potential was volt and the unit of current was ampere. Now let's today move forward and let's try to complete some of the derivation and one of the major problem in current electricity, which is known as Ohm's law. OHM apostrophe S, and then comes the word law. Now what technically do you mean by the term Ohm's law? Now guys, as I saw the comments started to, some of you actually started writing that in the comment section, that the school guys have actually completed a lot of chapters. Guys, do not worry, first of all. Though इसमें बहुत अच्छी बात नहीं है बोलने के लिए, but I think that is the reason why these coaching centers guys like us are actually doing their business, because the kind of syllabus or the way actually the syllabus is being completed, honestly that does not match the CBSE criteria. Now sir, आप बोल रहे हो कि हमारे स्कूल ने सिलेबस सही नहीं करवाया, बिल्कुल भी नहीं. बट यदि आप CBSE का ब्लूप्रिंट देखोगे तो it should take around 6 to 7 lectures of around 40 minutes is one lecture. So 6 to 7 lectures लगते हैं एक topic complete कराने के लिए. And if you don't believe me, you can type it on Google. Okay, the weightage, or by the way, the number of periods required to complete chapters, yeah, teachers guidelines for the part of chapters. So when somebody says that sir हमारा school चालू हुआ है first को या second को, and we have been able to complete around 6 chapters, so that give me a kind of doubt in mind, considering that Sunday को आपके classes नहीं होते होंगे, and मान लो यदि आपके first या second से चालू हो रहे हैं, today it's 25th. So please remember, first of all guys, that NCERT books are very good for the part of doing your revision, and first of all completing those books. They'll give you a very nice ideas and what the chapter is all about. But remember, that is not all. I'm especially talking to the word toppers. They have to do a lot of questions, a lot of questions. When I'm saying a lot of questions, today the sheet which you'll be getting, hopefully you'll be able to understand which kind of questions I'm saying. Let's now move forward. So what technically do you mean by the word Ohm's law? Ohm, as in Sir Simon Ohm, actually gave this particular law, and what he said was a very, very simple task.
ही सेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि आपने टेम्परेचर को आगे नहीं किया, पीछे नहीं किया, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं किया, आपने उसको हाथ नहीं लगाया, इन दैट केस द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. The potential applied across the ends is directly proportional to the current. अब इसका मतलब क्या हुआ? Let us say suppose my class has got around say 20 students. Let's assume, okay? Now my class has got around say 20 students, and let's suppose that those particular 20 students are my 20 electrons, and I am the source of potential. Now if I am going to be, say the source of potential, I technically need to be very strong in terms of how I teach, in terms of how I control my class, because if I am unable to control my class, my electrons, which are the students, will randomly scattered. So current की quantity, because current कब बोलते हैं? जब electrons एक direction में flow करते हैं. So what actually does a teacher do? Teacher, does technically nothing, but what does it do? It tries to move the electrons in one single way, in one single flow. वो सबको कोशिश करता है कि वो एक रास्ते पर चले, and this is going to give him, or by the way the school, a focused effort. Okay, that's the reason why. So understand that Ohm said that at constant temperature, the potential applied across its ends is directly proportional to the current flowing through the conductor. So what he said was something like this. Now very very important, students आमतौर पे कैसे रखते हैं? Ohm's law is V is equals to IR. That is not Ohm's law, guys. According to Ohm's law, V, which is known as potential, is directly proportional to I. This is Ohm's law. Ohm's law बोलता है that V is directly proportional to I. When I'm using the word directly proportional to I, जितना potential आप लगाओगे उतना ही करंट बढ़ना चालू हो जाएगा. यदि मान लो मैं बहुत स्ट्रांग टीचर हूं, तो कॉमन सेंस है मेरे क्लास में से मैक्सिमम ब्राइट स्टूडेंट्स या टॉपर्स या अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे. बट इफ आई एम अ वीक टीचर, ना तो मेरी क्लास कंट्रोल रहेगी, क्लास में हमेशा शोर होता रहेगा और बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनने वाले, एंड रिजल्ट्स भी बहुत पुअर आएंगे. सो टेक्निकली पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप बोलोगे सर इसका मतलब है कि यदि किसी क्लास में से शोर आता है तो मतलब टीचर खराब है. नो नो, I'm just giving you an analogy, or by the way an example, to make you understand that how potential is directly proportional to the current applied. Okay, now when you remove the sign of proportionality, then in maths एक constant आना चालू हो जाता है जब हम equals to लगाते हैं. प्रोपोर्शनल का मतलब जितना इसको बढ़ाओगे उतना ये बढ़ेगा, जितना इसको कम करोगे उतना ये कम हो जाएगा. ओके, सो V, जब आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट. सो I and R. Now very very important term, ये जो टर्म है, this is a constant for this and this value. यदि आपने एक सर्किट में एक पर्टिकुलर पोटेंशियल लगाया है और एक पर्टिकुलर करंट ट्रैवल कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हो. ध्यान रखना, एक सर्किट के अंदर यदि आपने पोटेंशियल और करंट को कांस्टेंट रखा हुआ है, देन आप रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हो, वो भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज उस है ही कांस्टेंट. Okay, now so V equals to IR. Now V equals to IR का मतलब क्या हो जाएगा? Now यहाँ पर V का मतलब क्या होता है? तो let's write V is potential, और potential difference भी बोल सकते हो depending on आपने एक एंड पे लगाया है दोनों एंड्स पे. So right now we will write potential difference. Then comes I, which is known as current. Potential difference की यूनिट होती है वोल्ट. ओके, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एंड यू ऑलरेडी नो दिस दैट एम्पियर एंड वोल्ट आर नॉट सेम. देन कम्स द वर्ड कांस्टेंट R. नाउ दिस R, व्हाट इज दिस R? दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट टेक्निकली डू यू मीन बाय द वर्ड रेजिस्टेंस? सो मेरे क्लास में जिसमें ये 20 इलेक्ट्रॉन्स एज किड्स बैठे हुए थे, एंड आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई सम इलेक्ट्रिकल फील्ड. मैंने कुछ धक्का दिया इनको, चलो 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 सब जने काम करना स्टार्ट करो, जल्दी से आज हमें होमवर्क करना है, टेस्ट देना है, सो एंड सो फॉर्थ. व्हाट डू यू थिंक? क्या सारे के सारे लोगों ने काम करना चालू कर दिया? नहीं, कुछ लोग जो पीछे बैठे होंगे, जो बैक बेंचर्स होंगे, या कोई फ्रंट में भी बैठा होगा या बीच में भी बैठा होगा. somebody, not all, somebody of them are going to say, hey, let's not do it यार, छोड़ना, बाद में करेंगे, let's not do it. So what are these?
these guys are also electrons but they are providing resistance. रेजिस्टेंस का मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं उनको बोल रहा हूँ काम करो ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा एंड यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, व्हाइल दोज गाइज आर सेइंग छोड़ बाद में करेंगे. सो दोज आर व्हाट? रेजिस्टेंस. सो जब भी ये एक्चुअली में होता क्यों है? व्हेन सपोज करो यू हैव गॉट अ वायर, देयर इज दिस पर्टिकुलर वायर एंड देयर आर सर्टेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. कोई रैंडमली यहाँ, कोई रैंडमली यहाँ, कोई रैंडम यहाँ, कोई रैंडम यहाँ, कोई रैंडम यहाँ, समथिंग लाइक दिस. नाउ जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, which is the positive part, these electrons will start moving towards it because ये तो negatively charged है. Electrical field positively charged, वो ऐसे में लगना चालू होगा. So these electrons will now start to move in a direction opposite to that of electrical field. So electrons will start moving right over here. So they'll move something like this. बट क्या ये अपने ऐसे में अपोज करेगा? नहीं, इसमें अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे में जा रहे होंगे. कैन यू सी दिस? कुछ अभी भी ऐसे में जा रहे होंगे. नाउ दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से, बिकॉज आप जाना चाहते हो ऐसे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाना चाह रहे हैं ऐसे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर गोइंग टू कोलाइड. जब ये कोलाइड करेंगे तो इनकी वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, अपोज करना. एंड जब कोई दो चीजें टकराती हैं तो उसकी वजह से क्या चीज प्रोड्यूस होती है? हीट. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कभी आप कोई भी चीज को से टकरा रहे होगे या आपने यदि करंट को बढ़ाया तो क्या होना चालू हो जाएगा? वायर हीट अप होना चालू हो जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो आज अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी? व्हाट इज ओम्स लॉ? According to Ohm's law, at constant temperature, potential is directly proportional to current. When we are going to remove the word current, remove the proportionality sign, it is going to be V equals to IR, where R is known as resistance. What does the resistance means? It is that particular ability of electrons to oppose what? The flow of electrons. वो current को उस direction में नहीं जाने देता. बाकी सारे बच्चे ऐसे जा रहे होंगे. Resistance. V equals to potential difference, which is volt. I equals to current, which is ampere, and R is resistance. What technically does the resistance do? Resistance हमेशा current को उस direction में जाने ही नहीं देता. जब वो ऐसे जाएगा तो ये resistance बोलेगा ये चल इधर चल इधर चल, like this, oppose. Okay. On the other hand, जब current, which is the flow of electrons in one direction, resistance will be like this. It is the same concept like the way friction works. आप जब ऐसे चलते हो तो फ्रिक्शन ऐसे में काम करता है, आपको नहीं जाने देगा. आप जब ऐसे में चलोगे तो फ्रिक्शन ऑपोजिट में लगना चालू, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन लगना चालू हो जाएगा, लाइक दैट. ओके. सो दिस इज द ओम्स लॉ. नाउ ओम्स लॉ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है रेजिस्टेंस. नाउ ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में करता क्या है? रेजिस्टेंस विल लेसर द अमाउंट ऑफ फ्लो. So resistance is going to reduce the amount of current flowing in a circuit. But before than that, you need to understand what do you mean by circuit. So circuit is nothing else. Circuit is nothing else but is a closed path. It is a closed path. What do you mean by path? It's a closed path where current can flow. But sir, closed का मतलब क्या हुआ? Current जहाँ से जा रहा है वापस आ जाएगा. यदि आपने कोई भी दुनिया में गैजेट देखा होगा, आपने देखा होगा हर एक में दो पिन्स होते हैं. There should be two pins. Okay. Now let's talk about first of all these pins. So I'm just randomly taking a particular pin. Say, अच्छा आपको अभी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा and I cannot take out that plug because the camera setup is with that. So आपके खुद के घर में जो मोबाइल चार्जर होगा उसमें दो पिन्स होते हैं. दो पिन्स की जरूरत क्यों पड़ती है? कॉमन सेंस है, एक जगह से करंट फ्लो कर रहा होगा, दूसरी जगह में जाने के लिए भी तो जगह चाहिए, which should be completing the circuit of your phone. So that is what? That is the circuit. तो सर्किट हमेशा क्लोज्ड रहता है. ध्यान रखना, तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो करेगा. Now some of the symbols which are very very important. So let's use some of the symbols जो हम बहुत commonly use करने वाले हैं अभी. कौन कौन से? The first part is this. जब भी कभी आप एक बड़ा बार बनाते हो और एक छोटा बार बनाते हो, this is known as cell. What do you mean by the word cell? Cell is a source of energy.
जब भी कभी बड़ी जगह पर जो भी बड़ा आपका ये जो स्टिक लगा होगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज के लिए काम में आता है और ये नेगेटिवली चार्ज के लिए काम में आता है. ओके, देन कम्स द वर्ड, यदि यही पार्ट like this, so this will be positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive and negative. So this combination of cells is known as battery. आप बोलोगे सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है? सेल इज अ सिंगल सेल, वो जो आप वॉचेस में लगाते हो दैट इज अ सिंगल सेल. बट यदि आपने उसी सेल को कंबाइन किया, अभी जो हम देखने वाले हैं इसी टॉपिक के बाद में, जब उन्हें कंबाइन करोगे, एंड देयर आर टू वेज ऑफ कंबाइनिंग दोस, जब उन्हें कंबाइन करोगे देन दे विल बी नोन एज बैटरी. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ बल्ब. Now what technically do you mean by bulb? आपके बुक्स के अंदर you might be able to see that there is this particular दो बार दिए होंगे and then there is this. Now this part is being shown as the tungsten bulb. ये मैं वो वाले बल्ब्स की बात कर रहा हूँ, नॉट द एलईडी बल्ब जो थोड़े से पुराने करीबन 4-5 साल पहले चलते थे या 6 या 7 साल पहले चलते थे. आज भी कई लोग यहाँ पर होते हैं. वो बल्ब ग्लास का बना होता है और यदि आप देखोगे तो अंदर येलो कलर की लाइट होगी. यदि आप उस बल्ब को बहुत क्लोज देखोगे तो आपको अंदर एक छोटा सा वायर दिखाई देगा. तो जो वायर का जो शेप होता है दैट समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे में. सो दैट विल बी नोन एज बल्ब. सो ये पार्ट शो करता है टंगस्टन फिलामेंट. सो ध्यान रखना, मैं जस्ट ब्रैकेट में लिख देता हूं टंगस्टन. Now, why do you use tungsten? Of course, I'll tell you later on. Right now, as of now, this is this. Okay, तो सेल हो गया, बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, टंगस्टन हो गया. Let's now move on to some more symbols. So let's talk about this part. ये जो zigzag lines होती हैं, they are known as resistance. So जब भी कभी कोई सर्किट होता है तो उसके अंदर यदि मुझे रेजिस्टेंस लगाना है तो इट विल बी दिस काइंड ऑफ वायर. ओके, रेजिस्टेंस. तो ये उसको केवल सिंबल होता है, वायर ऐसा नहीं होगा, वायर प्लेन होगा. बट रेजिस्टेंस मतलब वो जो प्रॉपर्टी है जो अपोज कर रही है उसको आपने ऐसे शो करा हुआ है. देन कम्स रियोस्टैट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रियोस्टैट? सो आमतौर पे कई बुक्स के अंदर रियोस्टैट को ऐसे 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 करके ऐसे एक एरो बना देते हैं. रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर. वेरिएबल रेजिस्टर, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को आप ट्वीक कर सकते हो या चेंज कर सकते हो इज नोन एज रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टर. ओके, ये सारे पार्ट्स ऑफ कोर्स आई टेल यू राइट नाउ. देन कमिंग ऑन टू द वर्ड एमीटर. Emitter. So what do you mean by the word emitter? Emitter is a device which is used to measure electric current and it is always connected in series. अभी केवल ध्यान रखना, अभी I'll just tell you what is series and parallel. Then comes galvanometer. What do you mean by the word galvanometer? Galvanometer is also a device which is used to measure electrical current and that is also connected in series. Then comes the word voltmeter. Voltmeter, and which is shown by the symbol V, and this is always connected in parallel. Then comes the next symbol. And voltmeter is used to measure potential difference. अभी केवल आप सुन लो and then I'll explain you each and every term. Then comes the word. The word is so suppose there is a circuit like this and there's a bar. This is known as closed switch. Closed switch, इसी को हम क्लास 12th में ऑन कंडीशन बोलते हैं, ऑन. और इसी को आप बाइनरी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर 1 बोलते हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर पार्ट ओपन स्विच.
इसी को हम लोग ऑफ या जीरो बोलते हैं. Now let's talk about one by one the term first of all. So as I told you now cell, but before by the way moving on to the word cell, let's understand what is this resistance first of all. ये symbols किस किस काम में आते हैं, what is the derivation, and फिर आगे बढ़ते हैं. Okay. So if you want to take a snapshot of this, you can. Or else आगे बढ़ते हैं. So let's move first of all. What is resistance? So resistance is that property of the conductor which opposes the flow of current. Resistance is that property or ability of current, or sorry, the wire which opposes the flow of current. Okay. So resistance current के हमेशा opposite direction में work करेगा. Now उसके पहले कुछ directions देख लो. Very 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 important. Directions. Whenever you are going to make a circuit, a closed circuit एक कैसा होता है? So I'll show you something like this. And let's take another part. Now what is this? Now before than that you proceed, let's apply one more circuit over here. Okay, it is my drawing guys, pardon me for this. Now let's understand first of all what is this. Now whenever you are talking about a circuit, so can you see this is a closed circuit. Current यहाँ से सब जगह से जा रहा है. Okay, इस तरफ से. ये है एक सेल, यहाँ पर बड़ा डंडा कहाँ पर है? बड़ी स्टिक. That is towards this side, तो इसको बोल देंगे positive and smaller side is known as negative, हमेशा. Now यहाँ पर what do you mean by the word direction? Electric current की दो चीजें होती हैं, दो definition होती हैं. I mean पहला तो आपने of course एक word पढ़ा था which is electric current can be defined as the flow of charges in one direction per unit time is known as electric current. So यहाँ पर यदि आप electrons की बात कर रहे हो, electrons, so electrons will always flow from negative to positive. इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहां से कहां जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां से यहां. बट देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम. बट इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड will always be from positive to negative. अब सर इसका मतलब क्या है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, एक्चुअली पुराने ज़माने से हम एक कन्वेंशनल वर्ड यूज़ करते हैं. उस टाइम पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उतना नहीं जानते थे, तो वी यूज़ द वर्ड कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है, हम उसी को ही इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन बोलेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने जब वायर के अंदर लगाया इस डायरेक्शन में, विच इज द पॉजिटिव फील्ड, सो इलेक्ट्रॉन्स गॉट अट्रैक्टेड एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? करंट. अब आप बोलोगे लेकिन ये तो गलत है सर. ऑफ कोर्स ये सही गलत है, बट इसको गलत नहीं बोल सकते, ये पुराने जमाने से हम लेकर के चले हुए आ रहे हैं. सो कभी किसी ने पूछा from where does the electric current flow? Electric current is always going to flow from positive to negative because electric current is used by what? By the flow of electrical field. जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड का होता है वही डायरेक्शन आप इलेक्ट्रिक करंट का भी अपने एग्जाम्स में लिखोगे. बट किसी ने पूछा देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो? यदि केवल किसी ने इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में बोला है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा. यदि इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज ग्रो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो फिर से रिपीट करता हूं कुछ सिंपल क्वेश्चंस. किसी ने बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. But where will the electrons flow? They will always travel from negative terminal of the battery towards the positive terminal of the battery. What does the direction of electrical field implies? The direction of electrical field implies the direction of electric current. Electrical field को ही पुराने ज़माने से electric current का direction मानते हैं.
बट इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो रिमेंबर दिस. ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ. ओके, नाउ ये हो चुका है. नाउ अभी देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. बिफोर देन दैट वी विल डू द सिंपल डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस कि वो किन किन फैक्टर्स पे काम करता है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द सीरीज एंड पैरेलल. आई डोंट थिंक ये सीरीज एंड पैरेलल आज हो पाएगा, बट जितना भी होता है. सो लेट्स सी. सो आई एम रबिंग दिस ऑफ. Okay, now let's talk about the word resistance. Now what do you mean by resistance? That you already know. The ability of the conductor to oppose the current is known as resistance, or resistance is that property of electrons which opposes the current. Okay. Now, so resistance depends on some factors. So the first factor is R is directly proportional to the length of the conductor. Now think about it. जितना लंबा वायर आप लोगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. इसका मतलब वो वायर उतनी जल्दी गर्म हो जाएगा. सिंपल. अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस से सपोज आपके घर में एक इन्वर्टर है, एक बैटरी लगी हुई है. ओके, और आपको यदि उस घर पे कनेक्शन देना है अलग अलग जगह पर, तो आपने एक रूम में दे दिया, दूसरे रूम में दे दिया, तीसरे रूम में दे दिया, और आपको ये वायर जगह जगह पर ले जाकर के घुमाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स सोर्स चाहिए होगा. नाउ द प्रॉब्लम इज, एक ये जो वायर है आपको ऊपर जो आपका जो टेरेस है, आपको यह छत है, उस पर भी आपको देना है, वहां तक ले गए, और ये है करीबन 5 मंजिल ऊपर, 5 फ्लोर्स ऊपर है ये. नीचे एक छोटा सा इन्वर्टर लगाया और 5 फ्लोर के ऊपर में आपको करंट देना है. व्हाट डू यू थिंक? क्या ऊपर का वायर ढंग से चालू या स्विच में करंट आ पाएगा प्रॉपर्ली? नहीं. क्यों? ऊपर जाते 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 ही उसकी तो हालत ही टाइट हो जाएगी. इन शॉर्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, और ये केवल ऊपर जाने के लिए नहीं है, ऐसे जाएगा तो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज ही होगा. क्यों? उतने कोलिजन्स करते हुए उसको जाना पड़ता है, उतने जगह से धक्का खाते हुए जाता है. आप खुद सोचो, जब आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल सुबह गए एकदम फ्रेश, मम्मी ने आपको ब्रेकफास्ट दिया एंड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइस आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल ओवर देयर इन द स्कूल. आप लोग हमसे भी ज्यादा काम करते हो, बट इट इज अज्यूम आप गए स्कूल पहुंचे, आपने पूरा ब्रेकफास्ट खाया हुआ था, उसके बाद में आपका लंच भी हुआ 1 बजे 2 बजे या वॉटेवर, या 12 बजे 11 बजे, एंड देन आप वापस से स्कूल आए बस से. टेक्निकली यदि आप देखो तो आपने कोई पत्थर नहीं उठाया, आपने कोई महान कोई काम नहीं किया, यू हैवंट डन एनी फिजिकल वर्क. स्टिल जब आप लोग घर पर आते हो वापस, यू फील कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. मॉम बस हो गया, एंड बैक साइड में, एंड देन अप साइड में, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाई डज योर एनर्जी जस्ट एग्जॉस्ट सो इजीली? आपने तो कुछ काम किया ही नहीं इन अ वे. अब बोलोगे नहीं सर पढ़ाई तो करी, लिखना भी तो पड़ता है, बट अंडरस्टैंड आपने बीच में सुबह ब्रेकफास्ट भी लिया, देन लंच भी लिया, और फिर अभी आने के बाद में वापस से मील खाओगे, फिर उसके बाद इवनिंग में भी आपको स्नैक्स मिलेंगे या कुछ भी, एंड देन रात में डिनर भी. कितना खाओगे भाई? द वर्ड इज रेजिस्टेंस. बिकॉज आधे टाइम तो टीचर ने बोला काम करो, हाँ नोट करो, यस, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मोर द एनर्जी. दैट्स अ सिंपल. करेक्ट? सो जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन कम ऑन दिस? इफ द वायर इज अ 5 meters and if the initial resistance is say R, okay, if the initial resistance is say R, so if the wire is now made for around say 10 without even stretching, हम लोगों ने बस अब एक दूसरा टुकड़ा लिया वायर का जो 10 मीटर का है, 5 मीटर के बजाय 10 मीटर्स का है. अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि पहले 5 था तो R था, अब 10 होगा तो 2R, 15 होगा तो 3R, 20 होगा तो 4R. दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी. सो जितना आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, लेंथ उतना क्या हो जाएगा? उल्टा बोल दिया. जितना आप लेंथ को इंक्रीज करोगे उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. लेट्स नाउ मूव ऑन टू द पार्ट सेकेंड. R is inversely proportional to area. R is inversely proportional to area. Now what do you mean by R is inversely proportional to area?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ ये मेजॉरिटी बच्चे गलत करते हैं। जब आप इसको बोलोगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो प्लीज डोंट से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इनवर्सली का मतलब ही 1/, होता है। तो आपने कहीं ऐसे बोल दिया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, दैट मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a. So don't say, sorry, A. So don't say like that. Simple. R is inversely proportional to A. R is directly proportional to L. अब बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब क्या हुआ? जितना वायर मोटा होगा, जितना वायर मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम। जितना वायर मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम, उतना वो गर्म कम होगा। वाइल जितना पतला वायर होगा, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, जितना पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, मतलब वो उतनी जल्दी गर्म हो जाता है। अब आप कॉमन सेंस सोचो, आपके यहाँ पर, एंड देन आपको समझ में आ जाएगा। आपके यहाँ पर मान लो एक कोई पुराने टाइप का एक कोई घर है और पुराने टाइप के मीटर्स लगे हुए हैं, तो आजकल तो नहीं होते हैं, पर पुराने टाइप के मीटर्स लगे हुए हैं और मीटर के नीचे ही एक आपको फ्यूज़ दिख जाएगा बड़ा सा। ओके, नाउ ये फ्यूज़ में कुछ भी नहीं होता है, इस फ्यूज़ के अंदर एक वायर लगा होता है। अब प्रॉब्लम ये है, आपने जब भी कभी कोई गीज़र ऑन किया है, मम्मी ने आयरन ऑन करी या आपने कोई टीवी ऑन किया एंड ये फ्यूज़ चला जाता है, मान लो कुछ हो जाता है। आपको मालूम है कि बेसिकली फ्यूज़ सही कैसे करते हैं, तो आपने लिया, आपने फ्यूज़ का वायर दूसरे गए मार्केट में खरीद लिया, बट फिर से ऑन कर रहे हो, वो फिर से फ्यूज़ हो रहा है। अब आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन ने आपको बोला, अरे सर इतनी सिंपल प्रॉब्लम, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज इसमें ऐसा काम करता हूँ कि आपको दोबारा फ्यूज़ कराने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसने इस बार जानबूझ करके इसने पतले वायर की जगह मोटा वायर डाल दिया, आपने फ्यूज़ लगा दिया। अब खुश, क्योंकि जब भी मम्मी ने गीज़र ऑन किया, मम्मी ने बोला वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो फ्यूज़ खराब ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। What do you think? Have you done the right task? No, you haven't done the right task. In fact, आपने सबकी लाइफ खतरे में डाल दी और आपकी गैजेट्स की भी। कैसे? आपने जब उस वायर को मोटा कर दिया है बाय डूइंग मल्टीपल राउंड्स, इसका मतलब है अब करंट उसमें से कैसे फ्लो करेगा? ज़्यादा। जब करंट उसमें से ज़्यादा फ्लो करेगा, तो मान लो जो आपके घर में ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, AC है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन्स हैं, दीज गैजेट्स जब भी कभी बाय मिस्टेक ज़्यादा करंट आ गया, जैसे बारिश के टाइम पे हो जाता है या किसी के यहाँ अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो हो जाता है, उस कंडीशन में वो गैजेट्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि फ्यूज़ तो अभी बर्न ही नहीं होगा, हीट ही नहीं होगा। जब हीट नहीं होगा तो वो बर्न नहीं होगा, बर्न नहीं होगा तो फ्यूज़ ब्रेक नहीं होगा, फ्यूज़ ब्रेक नहीं होगा तो अंदर करंट जाएगा, अंदर करंट जाएगा, सारे के सारे डिवाइसेस गायब होना चालू हो जाएंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस की जो करंट की रेटिंग होती है, उतना या उससे बिल्कुल बराबर ही फ्यूज लगाते हैं। यदि आपने फ्यूज काफ़ी ज़्यादा साइज का लगा दिया, तो रिमेंबर दैट जो डिवाइस है वो खराब हो जाएगा। ओके, नाउ सो हमेशा ध्यान रखना, यदि आपने कभी रेलवे स्टेशन देखे हों, तो रेलवे स्टेशन में जितने भी जो ट्रेन जाते हैं, आजकल तो सारे इलेक्ट्रिकल ट्रेन हो चुके हैं, तो अपने ऊपर के केबल्स देखिए, जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं, ओवरहेड केबल्स बोलते हैं उनको, HT वायर्स, ओवरहेड केबल्स, उनका साइज हमेशा मोटा होता है, लेकिन आपके घर में जो वायर होता है वो हमेशा पतला होता है, क्योंकि उनको उतना करंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। While railways के इंजन को रन करने के लिए huge amount of current is required, and that's the reason why वो मोटे वायर्स हैं। Now tell me in the comment section, simple question, if those thick wires are being replaced by thin wires, will the train complete its journey or not? Or what do you think is going to happen? And please don't write the train is going to burn. Okay, train burn नहीं होता, but then you just need to tell me what actually happens if I replace those thicker wires with thinner wires. Okay, now so this point should be clear now. Now let's move on to the point number 3. So R is directly proportional to L, R is inversely proportional to area. यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, R is directly proportional to temperature as well. Now what do you mean by temperature? Now आमतौर पे इसको हम लोग डेरिवेशन में यूज नहीं करते हैं, बट अभी के लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है दैट जनरली मेजॉरिटी
Resistance is directly proportional to temperature. I am again saying majority. There are lot of things which do not follow this proportionality order. So resistance is directly proportional to temperature. When I am using the word resistance is directly proportional to temperature, जितना temperature बढ़ाओगे resistance उतना क्या हो जाएगा? What do you think? बढ़ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपके पास में कोई कार है तो एक काम करना, सिंपल एक्सपेरिमेंट, अपने फोन को जो डैशबोर्ड होता है ऊपर प्लास्टिक का या किसी भी चीज का, उसके ऊपर में रख देना, विंडोज को बंद कर देना, रख के छोड़ देना और गाड़ी को धूप में खड़ा कर देना। आपको मालूम है थोड़ी देर बाद में गाड़ी गर्म हो जाती है अंदर, ऑफ कोर्स बिकॉज एसी ऑन नहीं है, अपने लॉक लगा के चले गए। आप देखोगे करीबन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट के बाद में द फोन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू स्विच ऑफ। सर बट द फोन, सर बैटरी तो थी फोन में, तो फोन स्विच ऑफ क्यों हुआ? फोन स्विच ऑफ इसलिए हुआ बिकॉज टेम्परेचर बढ़ चुका है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, फोन इतना हीट अप हो चुका है दैट अब उसके अंदर के सर्किट्स बर्न ना हो जाए, इसलिए फोन ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? ऑटो शट डाउन। इसीलिए आप देखोगे आपके जितने भी कंप्यूटर लैब्स होते हैं या जितने भी ये जो मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स होते हैं, इन सब को नॉर्मली ठंडी जगह पर रख करके काम करते हैं। हीटेड जगह ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम ही नहीं करते, जिनमें भी माइक्रो प्रोसेसर या सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, सो लेट्स कंबाइन ऑल ऑफ दिस फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ and then I will tell you about the graph combining law number 1 and law number 2. So let's combine them. So what do you think is going to happen? R is directly proportional to L by A. आपने पहले बोला R directly proportional to L था, फिर आपने बोला R inversely proportional to A, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और मैंने इसको लिख दिया R directly proportional to L upon A. If R is directly proportional to L upon A, तो यहाँ पर जब मैं proportionality का साइन हटाऊंगा तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा which is known as rho, रोने वाला रो। R is equals to rho L upon A, where what is L? L is known as length, इसकी यूनिट होती है मीटर, एरिया इसकी हमेशा यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, देन कम्स रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। Resistivity. Now what do you mean by the word resistivity? Resistivity is that particular property, or resistivity is that property of a conductor which is what? Which is constant and which depends on that how much amount of current would be flowing per unit area of the conductor. अब इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टिविटी वो चीज होती है जिसके वजह से एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से डिफर करता है या डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कभी ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते हो तो वेरी फ्यू पीपल विल टेल यू, एक्चुअली नोबडी विल टेल यू, नॉट इवन द फ्लिपकार्ट विल टेल यू। यदि आपने कभी वहां पर देखा होगा तो आपको मान लो दो तरह की अलग अलग आयरन मिल रही है। आयरन करने वाली आयरन। ओके, पहले आयरन के अंदर लिखा होगा द एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल। ओके, सो वो जो आयरन है जिससे अपन आयरन करते हैं कपड़ों को, उसके अंदर जो एलिमेंट लगा है, एक में लिखा है आयरन का है और दूसरे में लिखा है कॉपर का है। सो दो आयरन है। एक जो आयरन वाली जो जिसमें मेटल आयरन यूज किया है उसका कॉस्ट होगा अराउंड 700 रुपीज, और जो कॉपर वाली जो आयरन होगी उसका कॉस्ट होगा करीबन 1400 रुपीज। ना हो नॉर्मली आप लोग पढ़े लिखे तो होते हो इंग्लिश मीडियम, बट यू एक्चुअली आर नॉट लिटरेट इनफ। कैसे? आप लोग केवल प्राइस देखते हो, अरे ये महंगा है तो ये अच्छा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट जिसके अंदर भी कॉपर यूज होगा, बिकॉज कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। क्यों? बिकॉज कॉपर की रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। What do you mean by कॉपर की रेजिस्टिविटी इज वेरी लो? इसका मतलब है कॉपर, यदि सेम करंट दोगे कॉपर में और आयरन में,
तो कॉपर का जो वायर है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो वो कम करंट को रोकेगा। इसका मतलब है इन शॉर्ट उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो इट विल अलाउ मोर इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू इट। वाइल आयरन की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो यदि आपने सेम करंट दिया तो आयरन ज़्यादा करंट को रोकेगा और जल्दी हीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना दैट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड कॉपर, सो कॉपर ऑफ कोर्स कम करंट के अंदर बेटर रिजल्ट देगा। अब सपोज कर लो आपके फ्लिपकार्ट के अंदर ही सेकंड क्वेश्चन फॉर द पार्ट ऑफ कमेंट सेक्शन, एंड गाइज प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई एम पर्पसली आस्किंग यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि मुझे कोई फायदा होने वाला है। नो नो, it is just to make the thing more interactive so that I can come to know कि whether you are even paying attention onto the part of lecture or not. So second question for the part of comments is Flipkart के ऊपर में ही या Amazon के ऊपर में या Snapdeal के ऊपर में या किसी भी साइट के ऊपर में there are two air conditioners available both with the same specifications, दोनों का power wattage सेम है 1250 watts 1250 watts, दोनों के अंदर सब कुछ सेम टू सेम है, दोनों सेम कंपनी के हैं ऑलमोस्ट, लेकिन एक कंपनी का एसी मिल रहा है आपको 25,000 रुपीज़ का, पर दूसरे कंपनी का एसी मिल रहा है 34,000 रुपीज़ का। आपने देखा पहले वाले एसी में जैसे जो 25,000 रुपीज़ का है उसमें लिखा है एल्यूमिनियम कंडेंसर या एल्यूमिनियम कॉइल, नॉट कंडेंसर सॉरी, एल्यूमिनियम कॉइल, और दूसरे वाले एसी में लिखा है कॉपर कॉइल। नाउ टेल मी which particular AC do you think is a better value for money, and also why is the second AC more expensive than the first? Okay, now second का आंसर का मैं आपको दे देता हूँ, because copper is a much more expensive metal as compared to aluminium, but price में इतना difference क्यों है, and what or which AC should you select? So as of now we'll stop this part over here. R is equals to rho L upon A पे कल हम लोग यहीं से ही यही वाला टॉपिक चालू करेंगे। I'll also show you the graph of Ohm's law. I'll also show you what do you mean by resistivity. I'll also show you how by the way this particular temperature differs. I'll also show you by the way the parallel and series का derivation, and I'll also show you the power का derivation. See ya guys. Thank you so much for watching this video. Enjoy. Take care.